what I like to say is that if you want to do anything in life, just try to be consistent and you'll reach things. कभी कभी बोर्ड को कम टाइम, कभी कभी आईपी मैट को कम टाइम, बट दोनों को टाइम हर दिन कंसिस्टेंटली देना ही देना है. एंड वी नो कि हर एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग है, तो इसके बारे में क्या बताओगे? Hi everyone, so welcome to Rodha IP Mat, and we have a very special guest with us, that is Agrim. Agrim was a part of our Believers batch and he has converted I am Rohtak. So Agrim, I would like to ask you, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आई रिमेंबर विविडली कि आपने मेरे को भी मैसेज करा था एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी फॉर यू बिकॉज आई थॉट यू वर रियली डेडिकेटेड. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता चला कि आपका आई एम रोहतक कन्वर्ट हो गया है? Right, sir. So I was really happy, and I remember that I started dancing on my favorite song. And then I told my mother and my brother that see आपके बेटे ने finally I am crack कर लिया है and अब वो I am के tag के साथ घूमेगा. Can I ask you which was that song जिस पे आपने डांस करा था? Right, sir. So sir, it was Boom Shaka, and it just came out like 3-4 days ago, and it was really on my head. So that was the song. Okay, that's nice. That's nice. Good way to celebrate, I would say. Yes. So How sweet. Agrim, can you give us a brief intro? Like 10th 12th आपका क्या था, कौन से सब्जेक्ट्स थे, हॉबीज के बारे में, है ना, विच प्लेस यू बिलोंग Right, टू, sir. थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो हमें बताओ, है ना, जस्ट फॉर एवरीवन टू नो. Right, sir. So hi everyone, I'm Agrim. I am 17 years old, and I have lived almost entire life in Delhi, Rohini. Furthermore, I had commerce and maths as my stream for 11th and 12th. Uh, Furthermore, my hobbies, they include hitting the gym and playing badminton regularly. So what I like to say is that if you want to do anything in life, just try to be consistent and you'll reach things. So, Agrim, obviously you told that you gave 12th standard, right? So, when did you discover IP Mat and how did you decide that, okay, this is what I want to do? Right, ma'am. So ma'am, I think that I discovered about IP Mat just when my 11th standard was about to begin. But then I was Okay. not very like मेरे को पता नहीं था कि market में कौन कौन सी coachings available है and क्या क्या like how I should prepare. And I was mentally not prepared for entering into a coaching for the first time in my life. So फिर at that time I looked forward to YouTube videos. Especially I started looking for cat videos of Rodha only. But then at a certain point when I started looking at the PYQs, I understood that यार ये तो बहुत ज़्यादा level का मैं भी पढ़ रहा हूँ and the exam doesn't demand so much focus and so much dedication in this particular situation. So then जैसे ही मेरा 12th standard चालू हुआ मेरे को समझ में आ गया कि I cannot waste any more time, and I started looking for coachings. But then the burden of board exams came. So then I joined Rodha IP Mat, I think just when the new year passed away, like around January 6 or 7. Okay. So Agrim, I would like to ask you, like, why did you join the Believers batch, and which features of the Believers batch if you can explain in detail, helped you a lot. And जो भी Believers batch के बारे में आपका feedback है, I want a genuine honest feedback about it. राइट सर. सो देखिए, अगर मैं एकदम प्लेन क्लीन तरह से आपको बताऊं तो बिलीवर्स बैच की सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा कोई भी टॉपिक मिस आउट नहीं होता इस एग्जाम में जो आज तक टेस्ट करा गया है एंड जो भी फ्यूचर में टेस्ट हो सकता है उसको भी इन डेप्थ कवर करा जाता है. फर्दरमोर जो भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं उनके लिए हमें टॉपिक टेस्ट मिलते हैं, डेली क्वेश्चन सर ग्रुप पे भी शेयर करते रहते हैं और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर उसके लिए डाउट सॉल्विंग ग्रुप इतना अच्छा है. लाइक योर पीयर्स, दे आर सो चैलेंजिंग एंड दे आर सो सपोर्टिव. तो अपने आप ही एक अच्छा सा एजुकेशनल एनवायरनमेंट आपको मिलता है. फर्दरमोर अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आती है तो फिर सर एंड मैम लाइक द एंटायर मेंटर ग्रुप इज देयर टू सपोर्ट यू एट ऑल टाइम्स. ऑल्सो जब आप आगे आगे चलते रहते हैं जर्नी में तो फिर कहीं ना कहीं क्रैशेस आते हैं तो फिर उस समय पे आपको एक चाहिए होता है हेल्पिंग हैंड. So that I think is really provided in this batch with the mentor support feature. So yeah, that is what I think the Believers batch is in few words. Definitely a very good place to be for all the IP Mat aspirants, right? Definitely. So, Agrim, I want to ask you this. Like you told that, all your mentors were very accessible to you, correct? And accessibility was particularly important for you because you joined late also, correct? So, Right, can ma'am. you tell me that what was it about every faculty that liked, मतलब आपको सबसे ज्यादा पसंद आया कि संचित सर की एक चीज, ब्रिजेश सर की एक चीज एंड मेरी एक चीज? Right, ma'am.
सो मैम आई थिंक कि संचित सर की ये चीज सबसे अच्छी है कि वो आपको पढ़ाई में तो कहीं भी डाउट है उसी समय रिप्लाई करते हैं, पर वो आपको कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके भी शेयर करते रहते हैं चीजें कि अभी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, और वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को गैदर करके कहीं ना कहीं आपको एक रिस्पॉन्स देते हैं। ब्रिजेश सर की ये बात है कि वो अगर आप उनसे ग्रामर का भी टॉपिक पूछेंगे तो फिर वो कभी भी प्लेनली उसको आंसर नहीं करते, वो अपने एक तरीके से आंसर करते हैं द सेम वे ही टीचर्स। तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ चलो अब ये मेरे दिमाग में फिट हो सकता है। एंड शर्वरी मैम की सबसे अच्छी ये बात है कि शर्वरी मैम एकदम टू द पॉइंट बताते हैं, नो टाइम वेस्टेड। पर उसके बाद अगर आप ऑल इलेबोरेट करवाना चाहें तो फिर मैम फिर तो एकदम मतलब पूरा ही सबका सब समझा देंगे आपको। इनफैक्ट फिर मैम आपको खुद क्वेश्चन बैक करते हैं कि अभी भी कुछ रह गया है या सबका सब सॉर्टेड है। सो दैट इज व्हाट आई थिंक वाज द बेस्ट अबाउट ऑल द फैकल्टीज। ओके। ऑल्सो अग्रिम लाइक आपका रोहतक में हो गया है राइट, बट आपने तो सारे एग्जाम्स राइट दिए मैम। होंगे। सो कैन यू टेल मी लाइक अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द एग्जाम्स? Right, ma'am. So, ma'am, definitely I gave IP Mat Rohtak, but I also gave IP Mat Indore. Also, because I'm from commerce background, so I gave CUT also. And also, like just when I was nearing November, एक नया एग्जाम आया था for the first time this year for Bangalore, for IIM Bangalore UG. So I gave that too. Okay. Agrim, can you tell me the difference between, for example, a Indore paper and a Rohtak paper? Like, what is the difference that you felt? कि दोनों में आई बिलीव की स्ट्रैटेजीज बहुत अलग हो जाती है पेपर टू पेपर. जिपमैट इज डिफरेंट फ्रॉम इंदौर, कोझिकोड इज टोटली डिफरेंट. ओके, तो इस जो डिफरेंसेस है इसको कैसे काउंटर करना चाहिए? इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? लाइक व्हाट आर द डिफरेंसेस इन डिफरेंट एग्जाम्स दैट यू फेल्ट? राइट सर। सो सर अगर मेरे को बताना हो तो आईपी मैट इंदौर एंड आईपी मैट रोहतक की डिफिकल्टी में मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि जमीन आसमान का फर्क होता है। एंड आई फील दिस पर्टिकुलरली क्योंकि रोहतक के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर वे मोर, तो उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि अगर मैं इनको बहुत सारे टफ क्वेश्चंस दे दूंगा तो फिर कट ऑफ ही बहुत लो चली जाएगी एंड समहाउ चैलेंजिंग एस्पेक्ट कम हो जाएगा एग्जाम का। एंड इंदौर में दे आर लाइक कि हम आपको 10 क्वेश्चन टफ देंगे, 10 क्वेश्चन इजी देंगे, 10 क्वेश्चन मीडियम देंगे। अब वो सबसे पहले ये स्किल डेवलप करो कि इजी क्वेश्चंस कैसे ढूंढने हैं, क्या आप में अभी इतनी स्किल है कि आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो। एंड धीरे धीरे अपनी जर्नी बनाते हुए सारे की सारी चीजों को क्रैक करते हुए चलिए। फर्दरमोर इंदौर के अंदर कहीं ना कहीं आपको वीएआरसी में टाइम का प्रेशर लगता है, पर आईपी मैट रोहतक में आई थिंक कि आपको रिवीजन करने का टाइम तक बच जाता है एंड दैट टू प्लेंटी लाइक 10 to 15 मिनट्स आप कहीं ना कहीं रिवाइज तक कर पाते हो, इतना आपके पास टाइम गैप भी होता है। तो कहीं ना कहीं आईपी मैट रोहतक इज सिग्निफिकेंटली इजियर देन आईपी मैट इंदौर। ओके अग्रिम, एक फॉलो अप क्वेश्चन इस पे कि व्हाट वाज योर लाइक आई एम रोहतक अटेम्प्ट स्ट्रेटजी? कैसे तुमने अटेम्प्ट करा और वो स्ट्रेटजी तुमने बनाई कैसे? मतलब कैसे तुम्हें आइडिया लगा कि इस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर, दिस वुड वर्क फॉर मी? उसके बारे में थोड़ा बताओ. राइट सर। सो सर लाइक मैंने आई थिंक अपना रोहतक का पहला मॉक दिया था एंड उसमें आई गॉट अ प्रीटी गुड स्कोर, बट आफ्टर दैट मैंने अपना रोहतक का दूसरा मॉक दिया एंड देन माय स्कोर लाइक स्ट्रैंगल्ड अलोंग एंड इट वेंट डाउन अ लॉट। सो आफ्टर दैट लाइक मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी आपसे कि सर ऐसा हुआ है, तो फिर आई थिंक आपने वाई टी पे वीडियो डाली थी कि रोहतक अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी करके, तो फिर मैंने वो फॉलो करा था जिसमें आपने बताया था कि फ्रॉम माय स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको सबसे पहले एलआरडीआई अटेम्प्ट करना चाहिए। लाइक अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, यू शुड जस्ट लुक एट ऑल द क्वेश्चंस क्विकली, एलआरडीआई देन वीआरसी एंड देन कॉन्स, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो एलआरडीआई देन कॉन्स देन वीआरसी गिवन व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सूट amongst VRC or cons. So फिर I went with LRDI, cons and VRC. So that was my attempt strategy, sir. ओके अगरिम, ऑब्वियसली यू आर अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड हमारे बैचेस में भी बहुत सारे बच्चे 12th के होते हैं एंड उनका बस यही एक होता है कि हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस ऑफ बोर्ड्स एंड आईपी मैट. सो कैन यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दैट कि आपने कैसे मैनेज किया? Right, ma'am. So ma'am, like मैं सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपको कभी भी बोर्ड्स विद आईपी मैट करना है तो फिर अपने दिमाग में चीज बैठा लीजिए कि आपको हर दिन आईपी मैट को भी एंड बोर्ड्स को भी टाइम देना ही पड़ेगा। कभी कभी बोर्ड्स को कम टाइम, कभी कभी आईपी मैट को कम टाइम, बट दोनों को टाइम हर दिन कंसिस्टेंटली देना ही देना है। एंड ट्राई टू फोकस कि आप आईपी मैट के तीनों सब्जेक्ट्स को ऊपर ऊपर से हर दिन एक बार या तो आगे लाइक यू आर प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट टॉपिक और यू आर आइदर रिवाइजिंग द टॉपिक विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड, so that really sets you strong among the other competitors. So that is I think what the best strategy is for cracking board.
Okay. So you told that you are from commerce background, है ना? So I want to ask one question क्योंकि ये question बहुत से लोगों के दिमाग में होता है students के कि should CUET be treated as a backup option for commerce background students? हाँ जी, डेफिनेटली मैम, बिकॉज़ सीयूईटी ऑफर्स यू टॉप कॉलेजेस इन डीयू, बी इट द नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस और द साउथ कैंपस कॉलेजेस। बट कहीं न कहीं वो आपके फैमिली बैकग्राउंड पे, आपके आई वुड से फाइनेंसेस पे एंड आपके लाइक इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आईआईएम रोहतक की फीस और other IIMs की फीस एंड ड्यू की फीस, दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, लाइक देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बट कहीं ना कहीं आईएम रोहतक में Correct. जो आपको टीचर की एक्सपर्टीज मिलती है और जो आपको पीयर ग्रुप मिलता है अपना, वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं टुवर्ड्स द मैनेजरियल एस्पेक्ट। पर अगर आप ड्यू को देखेंगे तो फिर दे आर कैरिंग ऑन विद द लाइक बीकॉम ऑनर्स। ऐसा हो गया कि सभी लोग कर रहे हैं, बट आईएम रोहतक से आईटी मैट करना विद विद वाइल सेविंग 1 ईयर, वो कहीं ना कहीं स्टैंड अपार्ट करेगा आपको क्राउड में। Okay. ओके अग्रिम, मैं थोड़ा क्यूए के बारे में पूछना चाहूंगा। जैसे क्यूए में देर आर लॉट ऑफ यूनिट्स, अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो गया, देन यू हैव नंबर सिस्टम, हायर मैथ्स, मॉडर्न मैथ्स, एंड वी नो कि हर एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग है। जैसे इंदौर में राइट सर। अरिथमेटिक बहुत सबड्यूट रहती है, बट आप रोहतक में देखोगे तो अरिथमेटिक प्लेज द डोमिनेंट रोल, राइट? तो हाउ इंपॉर्टेंट इज, मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि टू कवर ऑल द टॉपिक्स वेल सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड, इसके बारे में थोड़ा बताओ। बिकॉज बहुत बच्चे क्यूए में गलती क्या करते हैं, जस्ट फोकस ऑन वन यूनिट, ओके, सिर्फ अरिथमेटिक कर लेते हैं या सिर्फ अलजेब्रा राइट कर सर। लेते हैं, बट दैट डजंट वर्क वेल बिकॉज सब एग्जाम्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहता है और ईयर ऑन ईयर भी बहुत चेंज हो जाता है कई बार, है ना? तो इसके बारे में क्या बताओगे? राइट सर। सो सर, इसके लिए तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आंसर करना चाहूंगा कि जैसे कि आईटी मैट इंदौर के लिए अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, तो फिर आई थिंक वो नेचुरली और सारे के सारे आईटी आईएम के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर ही लेता है। क्योंकि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएम इंदौर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एब्सोल्यूट टॉप नॉच कॉलेज एंड आप सबका सब इन डेप्थ कवर करते हो चलते हो फ्रॉम द बेसिक्स टू द हाईएस्ट लेवल। तो अगर आपको दूसरे एग्जाम्स के लिए अपने आप को वो करना है, लाइक अपने आप को रूटीन में लाने उन एग्जाम के पैटर्न्स के लिए, तो फिर आई रिकमेंड कि वंस यू आर डन विद आईएम रोहतक, आईएम इंदौर, गो फॉर द मॉक टेस्ट। थोड़े 5-6 मॉक्स और लगाओ उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो उसके लिए क्यूरेटेड हो, एंड देन आई थिंक यू आर सेट फॉर इट। तो आपके दिमाग में बैठ जाता है एंड फर्दरमोर आपके अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी वो सबका सब सूट हो जाता है फिर आपके लिए कि ऐसे ऐसे मैं करूंगा एंड ऐसे ऐसे सबका सब चलेगा। एंड कहीं ना कहीं आप डिफिकल्टी लेवल के साथ भी काफी ज्यादा मैनेज करने लग जाते हो। आपको पता होता है कि ये टॉपिक जितना मैं सोच रहा था उससे भी आसान है, एंड ये वाला टॉपिक क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, जैसे कि आपने अरिथमेटिक बताया, तो फिर कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि अरिथमेटिक के मैं आसान लेवल के क्वेश्चंस, राउंड 1 के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करूं रादर देन डूइंग अलजेब्रा के राउंड 3 के क्वेश्चंस। करेक्ट, करेक्ट। एंड वी ऑल्सो से दिस, लाइक इफ द एग्जाम लेवल, सपोज इंदौर का भी लेवल 100 है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। वी ऑलवेज से दैट कि सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस दैट कैन हैपन इन दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना? बिकॉज रोहतक की भी कट ऑफ्स कभी 300 भी गई है और हाँ जी। कभी 363 भी, 400 भी गई है। तो यू नेवर नो कि क्या होने वाला है पेपर में। इट कैन बी वेरी टफ ऑल्सो। जैसे कई बार कट ऑफ 300 भी गई है तो दैट वाज अ टफ पेपर, राइट? 300 राइट out of सर। 480 is quite low, right? As even if it is Rohtak, and कई बार कट ऑफ 400 भी गई है, right? That means it can be very राइट सर। easy or it can be very tough or it can be moderate. Nobody knows that. पहले किसी को नहीं पता है। So always राइट सर। we suggest कि 100 की जगह आप 120 पे प्रिपेयर करो and go for IIM इंदौर का पेपर, right? अगर वो तैयारी करोगे तो you are well prepared for any uncertainties that you may face, है ना? My next question would be related to VRC. Like sir was discussing about cutoffs, right? So VRC में भी ये राइट। होता है कि बहुत high cutoffs जाते हैं and they are unpredictable also. So what हाँ was जी। your biggest challenge in VRC or how did you deal with these unpredictability and high cutoffs? राइट मैम। सो आई लाइक टू स्टार्ट द आंसरिंग कि मेरे लिए वीआरसी का सबसे टफ कंपोनेंट आरसी होता था। तो फिर मैं आई थिंक एंडिंग तक यही सोचता रहा था कि मेरे को आरसी के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, लाइक शुड आई अटेम्प्टिंग इन द स्टार्टिंग और इन द एंडिंग। सो दैट आई थिंक वाज अ नेगेटिव ऑफ माइंड। आपको ये चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। एंड सेकंड ऑफ ऑल, टॉकिंग अबाउट द अनप्रिडिक्टेबिलिटी, डेफिनेटली वो होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता था कि वीआरसी में इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक फर्स्ट गो ऑन द इजी देन मीडियम देन हार्ड क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे को लगता था कि टाइम तो मेरे को उस क्वेश्चन पे उतना लगाना ही पड़ेगा। बट एट द एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा नहीं है, वीएआरसी में भी हमें पहले इजी देखना है एंड यही स्ट्रैटेजी बनानी है। तो फिर कहीं ना कहीं फिर क्वेश्चन जल्दी होने लग गए और मेरे को पता चलने लग गया कि ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वीआरसी में आपको कहीं ना कहीं होता है कि
लाइक अभी अगर मेरे 10 क्वेश्चंस बचे हैं तो लेट मी गेस ऑन 5 ऑफ देम, क्या पता मेरा एक ठीक हो जाए या दो ठीक हो जाए एंड मे बी आई इट रिजल्ट्स इन अ नेट पॉजिटिव, बट ये बहुत कम चांसेस होते हैं व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन द हार्ड क्वेश्चंस. So yeah, that is what I think about the unpredictability component. Just give your 100% and believe in your strategy. Right. Also, since we are on the topic of scores and strategy and everything, I just want to carry the mock question also, that we had 10 mocks in our package and our believers batch की. Right तो now. आपका रोहतक में हो गया था, so आपने mocks दिए होंगे, and what was your मतलब prediction about it कि रोधा के mocks आपको कितने close लगे actual exam के? Right, ma'am. So मैम आई थिंक रोजा के मॉक्स की बेस्ट बात एक यही है, लाइक दो बेस्ट बातें. सबसे पहला कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मॉक्स की लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम है. एक मॉक आपको कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल मिलेगा, एक कंपैरेटिवली बहुत इजी मिलेगा. एंड समहाउ जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें भी आपको स्कोर्स में डिफरेंस दिखता है कि इस बार जो टॉपर है उसका स्कोर 400 क्रॉस करा है, या फिर टफ मॉक है तो फिर उसका स्कोर बस 320 के अराउंड ही बफर कर रहा है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जो मेरे को बेस्ट बात लगी वो ये थी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलती है, और वीडियो सॉल्यूशन भी उन्हीं टीचर से मिलते हैं जिनसे आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो. तो फिर कहीं ना कहीं वो कनेक्ट आता है कि यार इस क्वेश्चन को देख के शर्वरी मैम ने ऐसे सोचा था तो फिर मेरे को भी ऐसे सोच के एलिमिनेट करना चाहिए. कहीं ना कहीं वो कनेक्ट आ जाता है पेपर के दौरान कि इस वाले क्वेश्चन को मैं ऐसे कर सकता हूँ. सो दैट इज व्हाट आई Okay, थिंक. let's discuss your scores as well, अग्रिम, है ना. तो मैं इंदौर और रोहतक के आपके मॉक्स के स्कोर्स देख रहा था, रोजा आईपी मैट मॉक्स के. तो जैसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इंदौर के मॉक 1 में यू स्कोर्ड अराउंड 168 आउट ऑफ 360, एंड इंदौर के मॉक 2 में यू स्कोर्ड 127 आउट ऑफ 360, है ना. दैट इज अ ह्यूज ड्रॉप. एंड देन राइट. इवेंचुअली जब मॉक 9 का मैं स्कोर देख रहा हूँ आपके इंदौर का, तो दैट इज 183 आउट ऑफ 360, अगेन अ वेरी स्टेबल स्कोर. एंड तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि जब 160 से 120 की रेंज में आप आते हो, सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट, है ना. क्या आप पैनिक करते हो या आप सोचते हो कि ठीक है यार, दीज आर इनिशियल मॉक्स, ये सब होगा, एंड हाउ डू यू अगेन गो टू 180 190 वाली रेंज में ना. तो ये एक्सपीरियंस, इसके बारे में बताओ, क्या कभी पैनिक होता है लो, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद ऑल द स्टूडेंट्स. इवन हम जैसे शौर्य से भी बात कर रहे थे, उसके भी स्कोर्स में बीच में कई बार डिप आया है ना. डिप इज वेरी नॉर्मल कि कोई मॉक अच्छा नहीं गया, खराब हो गया. सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? राइट. सो सर जैसे कि आपने बोला कि डिप्स आना बहुत नेचुरल है स्कोर में. सर मैंने तो यही पर्सनली एक्सपीरियंस करा है कि अगर लाइक मेरे केस में जो स्कोर में इतना सिग्निफिकेंट डिप आया है, ये तभी पॉसिबल होता है जब आपको मॉक में ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं किसी पर्टिकुलर क्यूरेटेड टॉपिक के जो आपको बहुत ज्यादा वीक होता है, एंड फिर आप एकदम से स्ट्रगल करते हो कि ये तो मुझसे हो नहीं रहा, एंड देन यू पैम्पर ऑन द बैड क्वेश्चंस लाइक द इजी क्वेश्चंस एज वेल. तो फिर कहीं ना कहीं मॉक देना बहुत एसेंशियल बन जाता है. आपको ये पता चलता है कि यार आई एम नॉट ऑन दैट लेवल येट टू क्रैक दिस एग्जाम एंड आई नीड टू वर्क हार्डर. वो एक रियलिटी टेस्ट होता है आपके लिए. लाइक व्हेन आई सेट ऑन 126 लाइक एज यू मेंशन व्हाटएवर दैट स्कोर वाज, उसके बाद मैंने अलजेब्रा पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड बनाई थी, क्योंकि आई थिंक उस टेस्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज के एंड अलजेब्रा के काफी सारे क्वेश्चंस थे एंड आई डिड नॉट हैव स्ट्रांग होल्ड ऑन देम. फर्दरमोर वीआरसी में आरसी में आई स्ट्रगल्ड अ लॉट ऑन दैट टेस्ट बिकॉज वीआरसी वाज अ टफ कंपोनेंट. आई like vividly remember that mock. So that is what I think. You have to work on it. ऑल्सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट योर रोहतक के मॉक्स. तो रोहतक मॉक 1 में यू स्कोर 325 आउट ऑफ 480, एंड मॉक 2, मतलब 2 से 2 सेकेंड वाले मॉक से कुछ ना कुछ परेशानी थी आपको, तो सेकेंड वाले मॉक में स्कोर डिप टू 306 आउट ऑफ 480, राइट. एंड देन इवेंचुअली Right, sir. मॉक 7 में यू गॉट 348 आउट ऑफ 480, मॉक 8 में भी 349 आउट ऑफ 480. सो स्टेबलाइज हो गया ये 350 के आसपास. तो अगेन द सेम जर्नी हेयर इन रोहतक मॉक्स एज वेल, कि वो कभी कभी आपके स्कोर्स डिप हो सकते हैं, एंड देन इवेंचुअली यू हैव टू ओवरकम दैट. अपने वीक एरियाज को देखो एंड वर्क ऑन देम, एंड ऑल्सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल. तो ये बहुत जरूरी है. Right, sir. मॉक में अगर आपका कंसिस्टेंटली सेम स्कोर आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, राइट. या तो वो मॉक ज्यादा इजी हो गए हैं, राइट, या बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं आपके लिए, तो कुछ गड़बड़ है ना. वो फ्लिप्स ऊपर नीचे होना बहुत जरूरी है ना. ठीक है. Okay, Agrim. So since we are again discussing mock scores, but there's a very important step that most of the students miss. That is topic test. We always tell them that topic test is like a stepping stone to mocks. So, but students are still, they are ignorant about that. So, what is the importance of topic test? Let's hear it from horse's mouth itself today. So topic test की यही इम्पोर्टेंस है
कि आपको ये पता चलता है कि जो आपने पहले पढ़ रखा है, क्या वो अभी तक आपको याद है? एंड इज़ इट योर स्ट्रॉन्ग सूट? फर्दरमोर टॉपिक टेस्ट में भी रोधा में लेवल में डिफिकल्टी में दोबारा वो डिफरेंस देखने को मिलता था। लाइक आई थिंक हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए 3 या 4 टेस्ट तो मिलते ही मिलते थे। तो फिर उनमें से आखिरी के 2 टेस्ट आई थिंक वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते थे हम कि वो टफ साइड पे होंगे और स्टार्टिंग के 1 एंड 2 वो थोड़ी ईज़ी साइड पे रहेंगे। बट देन अगेन वीडियो सॉल्यूशंस होते थे, सर हमें मोटिवेट करते रहते थे कि टॉप्स आते रहेंगे एंडिंग में, पर फिर भी आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप टॉपिक टेस्ट के साथ कंसिस्टेंट हो, अगर आपने सारे के सारे टॉपिक टेस्ट कर रखे ना एग्जाम से पहले, आई बेट ऑन इट कि आपका पक्का एक टॉप आईएम में एडमिशन पक्का हो जाएगा। इफ यू आर इवन एट दैट लेवल, आप पक्का कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर ही दोगे। Also, Agrim, I would like to ask you, I would like to highlight Agrim was quite active in the our doubts group as well. So we'll put some screen clippings as well कि आप डाउट्स ग्रुप में बहुत एक्टिव थे, एक्टिव डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते थे। इवन यू हैव मैसेज मी न्यूमरस टाइम्स कि कभी प्रॉब्लम आ रही है, तो विल पुट दैट इंस्टेंसेस एज वेल जस्ट फॉर स्टूडेंट्स टू रिलेट। मुझे बताओ ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले प्रिपरेशन में, डाउट्स आप फ्रीली पूछ पाओ, एंड फैकल्टी भी अगर मान लीजिए स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते तो फैकल्टी फिर वहां पर इनिशिएटिव लेके उसको गाइड करे वहां पर, ये कितना इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन में? राइट सर। तो सर ये मैं दोबारा अपने पर्सनल ओपिनियन से आंसर करना चाहूंगा। तो सर मैंने ये पाया है कि लाइक जब मैं कोचिंग्स के लिए वो कर रहा था सर्च मार्केट में, तो फिर हमें कहीं ना कहीं कुछ डेज के लिए फ्री वो मिलते हैं उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। तो फिर काफी सारे कोचिंग वाले ना आपको या तो अपना डिस्कॉर्ड का कोई चैनल वो दे देते हैं या फिर उनके अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनी होती है। बट वहाँ पे आपको प्रोफेशनलाइज्ड आंसर्स नहीं मिलते। वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आंसर्स देख के पता चल जाता है कि ये तो बस चैट जीपीटी पे डाल रहा हूँ, जो भी उस बारे में आपको डाल के दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंदर से बुरी फीलिंग आती है एंड यू फील कि ये तो ट्रैश टॉक कर रहे हैं एंड दैट रियली डिमोटिवेट्स यू। बट रोदा की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन के लिए पूरे के पूरे आपकी पीयर ग्रुप भी आंसर देती है एंड सर भी आंसर देते हैं। तो फिर आपको एक क्वेश्चन के लिए 5 अलग अलग एस्पेक्ट से आंसर निकालने का तरीका दिखता है एंड फिर आप ये भी डिसाइड कर पाते हो कि मैं तो इससे भी बढ़िया तरीके से इसको आंसर कर सकता हूँ। एंड हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि अगर मैं कभी भी कुछ पूछूंगा मेरे को 2 या 3 घंटे के अंदर पक्का 2 या 3 जगह से आंसर मिल जाएंगे, दैट इज रियली गुड एंड इट इज अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर एंड आई थिंक दैट इज नेसेसरी। या दैट्स ट्रू। आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट आवर बूस्टर बैच, है ना? तो बूस्टर बैच का एक्सेस भी मिलता है बिलीवर्स बैच के साथ, एंड वो अलग से भी एक्सेस रहता है उसका। तो बूस्टर बैच में बेसिकली वी डू सम गुड क्वालिटी लेयर्ड क्वेश्चंस। वी डू इट इन मार्च टू अप्रैल वाला टाइम, लास्ट के 1.5-2 महीने के लिए, जस्ट बिफोर द एग्जाम्स। So, and we do it in LRDI also, in VRC also, in Q also. So how important was that booster batch wale questions and the regularity even in the last 2 months before the exam? राइट सर। तो सर बूस्टर बैच से मैं क्या समझ पाया कि आपका बेस स्ट्रांग हो चुका है, आपने सारे के सारे टॉपिक टेस्ट दे दिए हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हजारों बच्चे और हैं जो आपके लेवल पे खड़े हुए हैं। यू हैव टू सेट योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। तो फिर आप उसमें सारे के सारे कंसेप्ट को एक और बार रिवाइज करते हो एंड यू प्रैक्टिस सम हाई लेवल क्वेश्चंस जो आपको लाते हैं उस लेवल पे कि आप हाई लाइक जो टफ क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम को उनको भी टच कर पाओ उस समय पे, सो दैट यू नो टच दैट हाईएस्ट स्कोर and somehow guarantee yourself in that particular college. So that I feel was a very good thing about booster sessions. And moreover वो आपके लिए चीट शीट की तरह काम करते हैं। आपको पता होता है कि सबसे टफ क्वेश्चंस के सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं वो मेरे को पता है और कहीं ना कहीं यही टेस्ट करे जाएंगे टफ क्वेश्चंस में भी या फिर मीडियम क्वेश्चंस में भी। सो समहाउ एकदम वो होता है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। I would also like to ask you about GK PI batch का feedback. Like we had a lot of GK वाले sessions by Abhishek Dubey sir. PI के भी हमने extempore के sessions ब्रिजेश सर ने लिए, अभिषेक गुप्ता सर ने लिए. And how was the mock PIs, right? We did it from some professionals, mock PIs भी. तो उसका experience बताओ, how did it help you और कैसा लगा आपको वो? राइट सर। तो सर अगर मैं जीके की बात करूं तो फिर सर बिल्कुल बेसिक से लेकर सबसे टॉप तक लेकर जाने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को। लाइक पॉलिटी में वो पहले तो बेसिक डिस्कशन करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एंड देन वी गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल्स। टॉकिंग अबाउट ब्रिजेश सर की एक्सटेम्परी, लाइक आई वाजंट एबल टू लाइक लाइव पार्टिसिपेट इन दोस, बट मैंने देखी थी एंड समहाउ मेरे को पूरा का पूरा आइडिया लग गया था कि व्हाट इज सर ट्राइंग टू से। सबसे पहले फाउंडेशन बनाओ एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन व्हाटएवर यू आर सेइंग।
क्योंकि कहीं ना कहीं इफ यू आर, आपको अंदर के अंदर पता है कि आप जो बोल रहे हो इट इज थ्रैश, बट अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो दैट स्पार्क्स यू अपार्ट, एंड हैविंग दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. And talking about the mock PIs, definitely sir, they were by some like youngsters and they were professionals. Like मेरे को पता चल रहा था कि ये IIM के ही बच्चे हैं उनसे बात करके, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक सबसे पहले तो वो ये समझते हैं कि आप कौन सी स्ट्रीम से हो. फिर वो ये समझते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा लाइक रिपीटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं. लाइक मैं तो बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं तो लाइक मुझे जब इकोनॉमिक्स पे ग्रिल करा जा रहा था इन माय रोहतक इंटरव्यू, 3 क्वेश्चंस वर एग्जैक्टली द सेम. एक था कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, दूसरा था कि जो हमारे यूएस के वो है अभी फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट वो कौन चल रहे हैं, और तीसरा ये था कि अभी इंडिया के पास कितने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं. लाइक ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में एकदम फिट हो रखे थे, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में जब आप सेम प्रकार के क्वेश्चन टैकल करते हो ना तो आपको पता होता है कि ये एकदम प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं एंड समहाउ इनको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आपको ये भी पता चलता है कि 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वो हर एक बच्चे से टफ पूछते हैं, और आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि सटली अंदर पता होना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंटली उस समय बोलना है कि सर आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू रीड मोर ऑन इट. So that is a really, really important aspect of having mock PIs by professionals. Yeah. So Agrim, I would also like to ask you about the sheets that you got, है ना. तो हर चैप्टर Right, के sir. साथ आपने देखा होगा काफी सारी शीट्स भी आपको मिलती थी, which we have Right, even sir. increased this year. We have done RMS, daily RCs भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है. So RWs भी हमने, रोदा वर्कशीट्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, रोदा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. तो शीट्स का इंपॉर्टेंस इन कंजक्शन विद क्लास बताओ. जैसे क्लास में होमवर्क मिल रहा है वो आप कर रहे हो, देन शीट्स मिल रही है आपको, 2 क्लास की एक शीट, 3 क्लास की एक शीट, प्रैक्टिस की एक चैप्टर की काफी सारी शीट्स मिल रही है. जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस ईयर ज्योमेट्री में हमने आई थिंक 7-8 शीट्स ही करी है, राइट, विद द क्लासेस, एंड 15 क्लासेस विद इट. सो हाउ Right, इंपॉर्टेंट sir. इज द सॉल्विंग ऑफ शीट्स इन कंजंक्शन विद द क्लास, वो कितना इंपॉर्टेंट है? Right, sir. So, sir, like मैं दोबारा अपने पर्सनल ओपिनियन से इसको आंसर करना चाहूंगा कि जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाए बी रेडी कि अभी आपका स्टडी टाइम ओवर नहीं हुआ है, क्योंकि आई थिंक क्लास खत्म होते ही 1 या 2 मिनट के अंदर प्रैक्टिस शीट अपलोड हो जाती थी मोस्ट केसेस में. तो फिर उसी के 2-3 मिनट के बाद बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको भी 30 मिनट इसको याद करना है, याद नहीं करना, लाइक यू हैव टू रिवाइज थ्रू ऑल द कंसेप्ट, एंड उसमें अगर कोई 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है सो यू हैव टू अटेम्प्ट देम एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो समहाउ आपका एक टाइम टेबल बन जाता है, अच्छे से फिक्स रूटीन बनता है कि आप क्लास करोगे फिर प्रैक्टिस शीट करोगे एंड उसके 1 या 2 दिन के बाद टॉपिक टेस्ट दोगे जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस है. तो फिर बिल्कुल दिमाग में सेट रहता है वो टॉपिक, वो जाता नहीं फिर आपको छोड़ के. सो दैट इज आई थिंक वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस शीट्स. ऑल्सो अग्रिम, मुझे ये बताओ, जैसे हम रिवीजन को बहुत हाईलाइट करता हूँ मैं, अब तुमने देखा होगा क्लासेस में शुरू से मैंने बोला है कि एक टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स आफ्टर सम टाइम थ्रू टॉपिक टेस्ट और थ्रू नोट्स आप बार बार रिवाइज करो उसे, बिकॉज राइट सर. इतनी सारे टॉपिक्स हैं, वीआरसी 3 सब्जेक्ट्स हैं, सबको उस लेवल पे रखना एग्जामिनेशन डे से बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट गिविंग मॉक्स कि बस मॉक्स दे देंगे तो याद हो जाएगा ना. यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स, यू हैव टू लुक थ्रू द टॉपिक्स, वो बहुत जरूरी है. तो रिवीजन का रोल मुझे बताओ कितना इंपॉर्टेंट है. सर अगर मैं कंसिस्टेंसी और रिवीजन के बीच में अगर वो करना चाहूँ तो फिर मैं बोलूंगा कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो फिर आप रिविजन कर ही रहोगे. दैट इज व्हाट आई अज्यूम. तो फिर मैं सारा का सारा वेटेज कंसिस्टेंसी को देना चाहूंगा कि आप हर दिन इस एग्जाम के लिए 2 या 3 घंटे देना चालू करो. एट सम पॉइंट यू विल रियलाइज कि अब मैं सबका सब कर चुका हूँ बट आई स्टिल हैव हाफ और 1 आवर लेफ्ट ऑफ माई स्टडी टाइम. तो फिर तब आपको रियलाइज होगा कि इस टाइम में मुझे रिविजन करनी ही करनी चाहिए. सो मेक अ फिक्स टाइम टेबल, मेक अ पर्टिकुलर टाइम सेट. अगर आप हर दिन 2 घंटे दे रहे हो आईपी मैट के लिए, आई एम टेलिंग यू दैट इज वे मोर देन इनफ एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक इट. So that is, I think, what the importance of revision is. It sets everything in your brain, and you are mentally prepared to answer each and every question on that particular question, on that particular topic. ओके अग्रिम, लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी वाली वगैरह बातें तो हो गई है ना. सो एक लाइट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे दे डू स्ट्रगल विद दिस काइंड ऑफ चॉइसेस दैट कम वेरी लेट इन द स्टेजेस ऑफ प्रेप. सो सिंस यू जॉइंड वेरी लेट, what were the particular difficulties that you faced? Because you are telling me that you joined around New Year, that is January. Feb में आपके Right, ma'am. boards थे, so it would have been really stressful for you. So what will you tell us about that? How did you manage that stress? Right, ma'am. So, ma'am, like मेरे उस समय विंटर वेकेशन चल रहे थे एंड somehow उस समय तक आप एक बार प्री बोर्ड्स दे चुके होते हो, तो फिर बोर्ड्स की टेंशन थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि आपको पता होता है कि इन टॉपिक्स में मैं लैग कर रहा हूँ, मैं इनको अच्छे से कर लूंगा. एंड देन आई थिंक कि आपको
आपके सामने अभी प्री बोर्ड 2 होते हैं, जिनको मेरे स्कूल में प्रैक्टिस एग्जाम्स के नाम से जाना जाता था। तो फिर आपके पास पता होता है आपको कि अभी अगर मैं बोर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगा, तो मेरे को अभी सामने एक मेरा टेस्ट है, मेरे को पता चल जाएगा कि जो मैंने प्रैक्टिस करी है, इज़ इट अप टू द मार्क और नॉट? तो फिर मेरे को पता था कि अभी मैं आईपी मैट को पूरा अपना 100% टाइम दे सकता हूँ। तो फिर कहीं न कहीं मैंने अपने ईज़ी टॉपिक जो भी मेरे लेफ्ट आउट थे, उनको जल्दी से खत्म करा एंड आफ्टर दैट आई थिंक मैंने 6 या 7 डेज़ पूरा 100% आईपी मैट को टाइम दिया था। लाइक वीआरसी वगैरह करके एंड आफ्टर दैट लाइक फिर प्री प्रैक्टिस एग्जाम चालू हो जाते हैं। आई थिंक उस समय तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टेक आउट टाइम फॉर कॉम्पिटेंटिव एग्जाम्स, बट स्टिल मैं रिवाइज करते रहता था उन चीज़ों को, क्योंकि 15-20 मिनट में हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन भी हो जाती है। एंड जैसे ही प्रैक्टिस एग्जाम्स खत्म हुए मेरे, देन आई वेंट ऑल इन। तब तो भाई साहब पहले मैंने कॉन्स करे, उसके पूरी रिवीजन करी, फिर 3-3 टॉपिक टेस्ट लगा दिए, फिर मॉक वो प्रैक्टिस शीट्स भी कर दी, सेम विद वीआरसी, सेम विद एलआरडीआई। देन तो आई वेंट ऑल इन। Okay. Surprisingly, this makes lot of sense, correct? Because यही सबसे ज्यादा struggle वाला period होता है बच्चों का. So I want to come on my next question, which is regarding YT. So हमारे classes चल रहे थे, crash batch चल रही थी, booster चल रहा था. But at the same time, we were very active on YT also, because हम लोगों को लगता था कि जो हमारे batch के students नहीं हैं, उनको भी फायदा मिलना चाहिए इस चीज का. So we took lot of sessions on YT, marathons भी करे थे हमने बहुत सारे. So how useful were those YT sessions for you, Agrim? डेफिनेटली मैम। लाइक मैं इसको दो एस्पेक्ट से आंसर करना चाहूंगा। लाइक वाईटी पे दो तरह के सेशन होते हैं, एक होता है स्टडी रिलेटेड और दूसरा होता है डाउट रिलेटेड, क्वेरी रिलेटेड। तो पहले मैं क्वेरी रिलेटेड सेशंस को आंसर करना चाहूंगा। आई थिंक मोस्टली वो आप और संचित सर लेते थे। तो फिर आई थिंक Yes. आरसी के लिए मैंने आपसे 2 या 3 बार क्वेश्चंस पूछ रखे कि मैम मैं अपनी स्ट्रेटजी ऐसे ऐसे चेंज कर रहा हूँ, सो विल इट वर्क? सो आई थिंक यू वर ऑलवेज मोटिवेटिंग कि अगर हम ट्राई कर लेना, 2-3 बार ट्राई कर लेना, इफ द स्कोर्स इंप्रूव देन यू कैन गो ऑन। तो आपको कहीं ना कहीं बेस्ट एडवाइस देते हैं सारे के सारे मेंटर्स। टॉकिंग अबाउट संचित सर, मैं उनसे मॉक्स के स्कोर शेयर करना चाहता था, तो मैं उनसे हमेशा मॉक की स्ट्रैटेजी वगैरह अडॉप्ट करवाता रहता था कि सर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, क्या ये ठीक चल रहा है? तो सर भी बड़े मोटिवेटेड रहते थे कि अगर मेरे को पता है कि आप कर लोगे, आई होप गुड फॉर यू। तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि द टीचर्स आर स्टिल विद यू व्हेन इवन व्हेन दे आर टॉकिंग टू लाइक, मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहूंगा लाइक थर्ड पार्टी स्टूडेंट्स, तब भी वो एकदम अच्छी तरह से आंसर करते हैं कि उनको भी लगता है कि वाह यार ये तो कमाल ही हो गया। एंड देन टॉकिंग अबाउट द एजुकेशनल वाली वीडियोस, आई थिंक मोस्टली मैराथन्स ही आती थी, इवन दो एंड पीवाईक्यूज भी आते थे, पीवाईक्यूज की वीडियोस भी हैं सारी की सारी। सो आई थिंक दोज आर रियली टू द पॉइंट। अगेन अगर आप रोता से ही पढ़े हुए हो, तो फिर आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज अगर एक जगह पे मिल जाए, विच आर लाइक बीइंग सॉल्व्ड बाय आवर मेंटर्स जो कि आपको पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग से, आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे को सारे आते हैं, अब तो मैं एग्जाम में अच्छा ही करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि इस क्वेश्चन में ये स्ट्रैटेजी लगती है। टॉकिंग अबाउट द मैराथन्स, यू इवन गो वन स्टेप फर्दर। उसके अंदर हम आई थिंक कभी कभार तो ब्रिजेश सर तो बोल ही देते थे कि ये कैट का पी ट्राई करके देखो। सो आई थिंक दैट इज अ रियली गुड एस्पेक्ट ऑफ बीइंग रेगुलर ऑन द वाईटी सेशंस एज वेल। तो अगर कोई बच्चा इससे रोदा से नहीं भी है एंड उसने कहीं ना कहीं वाईटी सेशंस भी फॉलो कर लेना, तो फिर आई फील उसको लगने लग जाएगा कि यार आई थिंक कि ये मेरी कोचिंग से तो अच्छा ही है एंड आई शुड हैव गॉन फॉर रोदा, मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी, क्योंकि एक है एक फैक्टर है रोधा में। Okay. So बहुत सारी सीरियस बातें हो गई, स्ट्रैटेजी मॉक ये वो सब कुछ बहुत सीरियस हो गया. Let's move on to some fun element. I'm going to ask you some rapid fire questions and you have to answer them very quickly. Okay. राइट। So first question that I want to ask is quants or VRC? कौन? Okay. So my next question would be, what is your favorite quants topic? मैम अलजेब्रा। Okay. How would you describe your IP Mat journey in one word? मैम कंफ्यूजिंग। Confusing. Okay, very honest answer. How would you describe Rodha IP Mat in one word? बेस्ट। Okay. What is your favorite hobby that you like to do all the time? ऑल द टाइम, आई थिंक Yes. Or every day anytime. I try, right now, so playing badminton। Okay. Late night studies or early morning studies? late night studies। Okay. Mocks with or without video solution? definitely with video solutions।
Okay. Next question is also about mock, but I want you to tell me your most embarrassing mock score. I think it was an IPMAT indoor mock, and I scored around 120ish Okay. So out जिसकी of सर ने 360. बात करी थी अभी, right? Right, Also, ma'am. since you were 12th standard students, I want to ask you this: boards, IPMAT, or both? Definitely both. Okay. My last question would be: what is the one myth about successful or topper IPMAT students? That they are toppers from the beginning. Very honest answer. Yes. That's very nice as well, right? Yes. This is So- it for rapid fire. Yeah. अग्रिम एक मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि what advice would you like to give to a person who is starting now? I have just started for IPMAT, let's say 27 or 28. What advice you would like to give? जो भी आपको लगता है कि for example it can be we believe you should start as early as possible. आप अपनी जर्नी से भी देखोगे आपने जनवरी से ही मैनेज कर लिया, which is rare but good, है ना? तो क्या क्या एडवाइस आप देना चाहोगे for someone who is starting now or just started? राइट सर। तो सर नंबर 1 तो यही रहेगा कि आप माइंड बंद करके सबसे पहले तो अपने आप को रोधा में इनरोल करवा लीजिए। वो आपकी वैसे ही एकदम जर्नी पक्की कर देंगे। सेकंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि अडैप्ट योरसेल्फ टू बीइंग कंसिस्टेंट। आदत डालिए हर दिन पढ़ने की, क्योंकि अगर वो आदत नहीं डलेगी ना तो फिर एंडिंग में जो प्रेशर आएगा एकदम से बहुत कुछ करने का, दैट इज हार्ट ब्रेकिंग। सो बी रेडी टू गिव 3 और 4 आवर्स ऑफ स्टडी टाइम एवरी डे। इंजॉय भी करिए, अपनी हॉबीज को भी साथ में रखिए, पर स्टडी टाइम देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको फूड की तरह समझ के हर दिन करना ही करना है, छोड़ना नहीं है, जरूरत बना लीजिए उसको अपनी। Okay, so that's all from my side. I think we had a lovely conversation with Agrim. मुझे अच्छी चीज लगी, again a very honest conversation which Yes. we have with all the students, I guess, you know, very Yes. honest answers. And Agrim की खास बात मुझे ये लगी कि he has used all our resources very carefully, right? Yes. He has followed us blindly and sheets भी वो सारी करी है, topic test भी काफी दिए हैं, क्लासेस भी सारी करी है, मॉक्स भी सारे दिए हैं, मैंने आपको बताया भी सही कि सारे मॉक्स में देख रहा था अभी। सो ही हैज गिवन ऑलमोस्ट ऑल द मॉक्स दैट वर अवेलेबल, राइट? दैट वाज अ गुड नंबर, आई गेस। तो जो फॉलो करने वाली बात होती है, हम बोलते हैं कि मेंटोर्स को फॉलो करो, एक डिसिप्लिन लाओ, एक कंसिस्टेंसी लाओ, वो अग्रिम में था एंड राइटफुली ही डिजर्व्स टू बी इन एन IIM एंड ही हैज कन्वर्टेड IIM रोहतक। So wish you all the best, Agrim, and best wishes from my side, and let's be connected all the time. All the best, Agrim. डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच सर।